Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about Goodbye Mr. Chips, chapter number 6. Firstly, there would be a text, all text I would translate into English, and I have highlighted in a red color the synonyms of the all important word, which I will discuss at the end of the translation, and I will tell you about. I would translate in English and as well as in Urdu so that you can understand well, because there is no translation in your examination, but in Urdu translation understanding is very necessary so that you can understand it very well, because most of the question is given from the text, and if you are unable to read the whole text, then it would be very difficult to attempt the all question, because text gives you the perfect insight for your examination. So reading text is a much better to get extraordinary and unusual and outstanding result when you go through the text. So text is mandatory for getting good marks, not only passing examination. So we will go through the firstly we will go through the text and translate into English, and then in the second part of the lecture we will also discuss about the important questions and answer. I have given the question and answer, then after that my presentation and my lecture would be over. So come to the first page of the translation. We will discuss. In front of you there is a text. I have taken the original text over here, and you are watching that there are some words are highlighted with the red color. These are the synonyms word we will discuss after the one passage. When we will complete our one passage, we will discuss about this. No, I would like to start the translating of the text in Urdu. So Urdu and then English. There had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterward. कैथरीन से शादी के बाद चिप्स की ज़िंदगी में वो आसूदगी नसीब हुई कि तवील अरसा के बाद जब भी उस वक्त को वो याद करता था, बामुश्किल ही यकीन कर पाता था. बिलीव इट कुड एवर हार्ड हैपन बिफोर आर सिंस इन द वर्ल्ड. इस बात पे वो बहुत कम यकीन करता था कि दुनिया में इससे पहले या अब तक कभी ऐसा भी हुआ होगा कि नहीं. फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रम्पेट सक्सेस. क्योंकि उसकी शादी एक शानदार कामयाबी थी. कैथरीन कंकर्ड ब्रूकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड चिप्स. कैथरीन ने ब्रूकफील्ड को इसी तरह अपना सीर कर लिया जैसा कि उसने चिप्स को किया था. शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद द बॉयज़ एंड मास्टर अलाइक. वो लड़कों और असाजा में यकसां तौर पर बेहद मकबूल थी. Even the wives of the master tempted at first to be jealous of one so young and lovely and could not long resist his charm. हत्ता कि असाजा की बीवियां जो इब्तदा में इतनी जवान और दिलकश लड़की की हसद करने पर मायल थीं, और वो भी ज़्यादा देर तक इसकी दिलकशी के आगे जो है ना ठहर सकी. सो वी विल डिस्कस अबाउट द synonym of the word. What would be the synonym of the first paragraph? First overall here, the word is hardly. Hardly mean to say that. Scarcely बामुश्किल, and then happened is occurred mean take place, वाक़या होना. conquered जो है win है, जीतना है. And after that is trumpet is a brilliant, successful, brilliant, extraordinary, immensely, largely, ज़्यादा तौर पर, popular, famous, and there is charm is a beauty. So we have discussed about this, and now we will translate the next paragraph of our second paragraph of our text. So over here, but most remarkable of all was change she made in chips. सबसे ज़्यादा अहम वो तब्दीली थी जो उसने चिप्स में पैदा कर दी थी. टिल हिज मैरिज ही हैड बीन ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन. अपनी शादी तक वो एक खुश्क मिजाज ला ताल्लुक सा इंसान था. टिल हिज मैरिज liked and thought well by a ब्रूकफील्ड इन जनरल. जैसे आम तौर पर ब्रूकफील्ड पसंद करता था और अच्छा, मगर वो ऐसी खूबियों वाला आदमी था. But not of the stuff that makes for the great popularity or stir great affection.
जो कि बड़ी मकबूलियत का बायस हो या मोहब्बत के जज्बात उधारे। ब्रुकफील्ड में अब जो है ना ये उसके अंदर नहीं था। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। वो ब्रुकफील्ड स्कूल में तकरीबन 25 साल से जो है अरसा रह चुका था। लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए डिसेंट फेलो एंड हार्ड वर्कर। एक अरसा से एक मेहनती और नफीस शख्स साबित करने के लिए काफ़ी था। नेक्स्ट, but just too long for anyone to believe him capable of ever being much more। मगर ये अरसा किसी के लिए इतना तवील था कि वो इस पर यकीन नहीं कर सकता था कि अब वो यकीन नहीं कर सकता था। He had in fact already begun to sink into that creeping dry rot of pedagogy। क्योंकि वो हमेशा से कहीं ज़्यादा बेहतर बनने के काबिल था। दर हकीकत वो पढ़ाने के पुराने खुश्क और घिसे पिटे तरीकों में रच बस चुका था। विच इज़ अ वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल ऑफ प्रोफेशन। जो कि इसके पेशे के लिए हतमी पोशीदा एक ख़तरा है या ख़तरा था। इन विच then giving the same lesson year after year had formed a groove into which the other affair of his life adjusted themselves with the assiduous ease। यानी साला साल एक ही तरह के सबक पढ़ाते रहना और ऐसी आदतों को मामूल बना लेना जिससे ज़िंदगी के बाकी मामलात ने गैर महसूस तौर पर तन आसानी का शिकार हो जाएं। सो ही हैज़ डन इट समथिंग लाइक दैट। ही वर्कड वेल। उसने जो है एक बासूल बहुत अच्छा काम किया। देन ही वॉज कॉन्शियस। वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। ही वॉज अ फिक्चर दैट गेव सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पायरेशन। वो एक मकाम पर आकर ठहर गया था। वो मेहनती था, दूसरों का काम आना, उन्हें एतमाद में लेना, इत्मीनान फ्राहम करना, सब कुछ सवाए जोश और जज्बा उभारे बगैर। ये जो है हमारा सेकंड पेज को हमने जो है ट्रांसलेट किया है। और नो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड synonym of the word so that you can understand it very well. The first word is remarkable. Remarkable is splendid or exceptional. Then there is word another word is over here, that is establish. Establish is a setup. Setup. Then there is a decent. Decent is a fine. Then sink. Sink is decline. And creeping, there is word creeping. Creeping is slowly. And pedagogy is the methodology of teaching. Ultimate, finally. And there is word pitfall. Pitfall is hurdle, a trap. Then there is word of groove. Groove is a channel or habit or routine or practice. Then assiduous है। assiduous mean जो है crafty है या cunning है। Then conscientious, इसका मतलब जो है मुखलिस है, हार्ड वर्किंग है। देन इंस्पायरेशन है। इंस्पिरेशन का स्टिमुलस है या मोटिवेशन है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द सिनोनिम एज वेल। सो वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट पेज we will go to the next page then। and then came this astonishing wife girl। फिर जो है उसकी जो है ज़िंदगी में जो है एक बहुत ही पुरकशिश किस्म की, एक बहुत ही हैरान कुन नोखेज़ बीवी बनकर आई। वाइफ whom nobody has expected, least of all चिप्स himself। जो कोई भी आदमी उसका जो है तसव्वुर नहीं करता था और ना ही चिप्स जो है इसके बारे में सोचता था। शी हैज़ मेड हिम ऑल अपीयरेंस आ न्यू मैन। अब जो है उसने हर जहरी पहलू से चिप्स को एक नया इंसान बना दिया था। दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वॉज रियली अ वार्मिंग ऑफ लाइफ ऑफ थिंग दैट वर ओल्ड इम्प्रेजेंट एंड अनगेस्ट। अगरचे नयापन और ज़्यादातर हकीकी तौर पर इन जज्बात का मुतहरिक होना था जो पुरानी थी और उसकी ज़ात से मुकीद थी जिसका उसे अंदाज़ा ना था। देन हिज आइज बिगेन स्पार्कल। उसकी आंखों में चमक बेदार हो चुकी थी। हिज माइंड विच वॉज एडुकेटली
इफ़ नॉट ब्रिलियंटली कुक्ड, उसका जो दिमाग था जहनी में वो इतना पुरमगज नहीं था, लेकिन मुनासिब तरीके से ही बिगेन टू फील ग्रेटर स्ट्रेंथ, लेकिन उसके अंदर जो है और वो काफ़ी मुनासिब तरीके से उसके अंदर जो है वो ताकत आ गई थी। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट, और उसका नज़्म ज़ब्त जो है वो इस हद तक पहुंच गया कि अब जो है वो उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकता था। Adventurously one on his this thing had brilliantly cooked began to move adventurously, उसका जहन जो है शानदार तरीके से चलने लगा। that one thing he had always had, जो एक चीज़ वो रखता था, a sense of humor, मजाक का जो है उसकी जो सेंस थी, blossom into sudden richness, वो अचानक जो है खिलना शुरू हो गई। to which year lent maturity, जिसको इस हालत में आने के लिए बहुत ज़्यादा साल लगे। ही बिगेन टू फील ग्रेटर स्ट्रेंथ, उसे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होने लगी। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट एट विच, उसका डिसिप्लिन जो है इस हद तक बेहतर हो गया। फर्स्ट कम टू ब्रूकफील्ड ही हैड एम टू बी लव, जब वो ब्रूकफील्ड में पहले आया था उसका ये मकसद था कि उसे मोहब्बत की जाए, आनर दी जाए, एंड ओबे, और उसकी बात को माना जाए। बट ओबे एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर माना जाए। ओबीडियंस ही हैड स्क्वेयर्ड, फर्मा बरदारी उसने हासिल कर ली थी। आन आनर हैड बीन ग्रांटेड हिम, और इज्जत उसको अता कर दी गई थी। बट ओनली नो कम लव, अब मोहब्बत की बारी थी। द सडन लव ऑफ बॉयज़ फॉर अ मैन हु वाज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, अचानक लड़कों का जो है मोहब्बत करना शुरू कर देना बगैर जो है सख्ती से एस्की की तरफ जाकर। हु अंडरस्टूड दैम वेरी वेल इनफ, जो कि अच्छी तरह वो समझ जाते थे, बट नॉट टू मच, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड विद दैम विद देयर ओन, अब उनकी जो ज़ाती खुशियाँ थी वो उसके साथ जुड़ गई थी। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स, अब मिस्टर चिप छोटे छोटे मजाक किया करता था। द सॉर्ट दैट स्कूल बॉय अलाइक्स, इस तरह के मजाक जो स्कूल के लड़के पसंद करते थे। निमोनिक्स एंड पन्स दैट रेज लाफ, जो निमोनिक्स जो है वो उनकी मज़ाहिया चीज़ जो आपकी मेमोरी को बेहतर करता है, और चुटकुले और मजाक जो है वो इस तरह करता था कि लोगों के मुंह से जो है कह के निकलते थे। एंड द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द मैन, और उसी लम्हे जो है मिस्टर चिप्स के दिमाग में ठहर जाते थे। देर वॉज वन नेवर फेल टू प्लीज़, उनमें से एक मजाक ऐसा था जो कभी भी खुशी पैदा करने में नाकाम नहीं हुआ। दो इट वॉज द वेरी सैम्पल ऑफ मैनी अदर, ये दूसरों का एक नमूना था। वेन एवर हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म केम टू डील विद द लेक्स कैनोलिया, जब कभी वो रोमन की क्लास लेते थे तो उसका जो है एक रूल जो है लेक्स कैनोलिया पढ़ाते थे। दैट लॉ परमिटेड द पेट्रिशियन टू मैरी प्लेबियन, ये एक ऐसा कानून था जो कि अमीर लोगों को, नवाब लोगों को इजाज़त देता था कि वो आम आदमी से शादी कर सकें। चिप्स यूज टू एड, चिप्स अक्सर मजाक में ये कहते थे, सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब वांट टू मिस्टर पेडिशन, अच्छा तो अगर एक मिस प्लेब है और मिस पेट्रिशन जो कि नवाब है उससे शादी करना चाहती हो, टू मैरी हर, एंड सेड ही कुडंट, और वो कहता कि वो नहीं कर सकती। शी प्रोबेबली रिप्लाइड, और गालबन वो जवाब देती थी, ओ यस यू कैन, तुम कर सकते, यू लायर, तुम झूठे। रोर ऑफ लाफ्टर, उसके बाद जो है बड़े बड़े कैकों की आवाज़ आती थी। अब हम जो है डिस्कस करेंगे। एस्टोनिशिंग है, चार्मिंग है। सिनोनिम्स, न्यूनेस, इनोवेटिव, स्पार्कर, ग्लो, एडिक्वेटली, इनफ, ब्लॉसम, ब्लूम्स, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी हो गया राइपनेस, rigid, hard, granted, bestow. We will send them mnemonic system of improving memories. And then plebeians, plebeian is a common person, and patrician is a barons, नवाब जो होते हैं। probably जो है वो है गालबन। So we will discuss about the second page, and then there is another page which we have been translating by me. Then you can understand it very well. Uh, Next, and Cathy broadened his views and opinion, also giving him an outlook for beyond the roof and turret of Brookfield, so that he saw his country uh, as something deep of gracious to which Brookfield was but one of many feeding stream.
बड़ा लंबा सेंटेंस है। जिन्हें सुनकर लड़के कहके लगाते थे, इसे आगे शुरू करना है। और कैथी ने उसके नज़रियात और उसकी आरा को बड़ी वुसअत पैदा कर दी। अब उसकी नज़र में ब्रूकफील्ड की छतों और उनके मीनारों से आगे तक जाने लगी। इस तरह वो अपने मुल्क को एक अमीक और पुरएहसास समुंदर जो है समझने लगा, जिसकी खिदमत करने से बहुत सी नदियाँ में से ब्रूकफील्ड भी एक नदी की तरह था। प्योर लिटरेचर का वर्ड है। सो शी हैड अ क्लेवर ब्रेन देन हिज। उसकी तरह वो जो है कैथरीन का जहन चिप्स के जहन से ज़्यादा जहीन था। एंड ही कुड नॉट confute her ideas even if and when she disagreed with them। यहाँ तक कि अगर वो कभी इससे इख्तलाफ राय रखता भी तो कैथरीन के ख्यालात की तरदीद ना कर सकता था। ही रिमेंड फॉर इंस्टेंट, मिसाल के मसलन इसने कैथरीन के इश्तराकी इनकलाबी नज़रियात, मीन टू से दैट कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, वो जो इश्तराकी इनकलाबी नज़रियात के बावजूद डिस्पाइट ऑफ और रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, अब जो है इसके बावजूद भी हुकूमत पसंद ही रहा। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज अब्जॉर्ड, लेकिन जहाँ वो उसकी राय का बातों को कबूल ना करता था तो वहाँ वो खामोश हो जाया करता था। हर यंग एडलिज्म वर्कड अपॉन हिज मेच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन एमलगम। मसलन जवानी में चीज़ों को मिसाली अंदाज में देखने के लिए कैथरीन की आदत चिप्स की पुख्ता उम्र पर यूँ असरअंदाज हुई कि अब वो जो है एन एमलगम अ वेरी जेंटल एंड वाइज, कि अब उस शराफत और जहानत का एक हसी इम्तजाज बन चुका था। सो वी विल डिस्कस अबाउट द synonym of about this one. The first one is persuaded, convince है। persuaded का there would be persuaded is convince, हम convince करते हैं। generously है charitable है। revolutionary is a progressive। survive is sustain। frosty is icy। reception is greeting। then persisted, so you can say that persisted is retained। So this is the synonym of this one. Now we will jump to the next paragraph. So next paragraph we will translate it, and after that we will definitely discuss in Urdu and English। Okay, chips, he said they are wrong। वो कहती थी कि चिप्स, आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है गलत हैं। और क्या कहती थी, एंड आई एम राइट, और मैं बिल्कुल ठीक हैं। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, और मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ। एंड दे एंड यू आर लुकिंग बैक द पास्ट, आप और वो स्कूल वाले जो है वो माजी की तरफ देखते हैं। इंग्लैंड इजेंट ऑलवेज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू ऑफिसर एंड अदर रैंक। इंग्लैंड को जो है आप दो हिस्सों में कभी तकसीम नहीं कर सकते। इंग्लिस्तान को हमेशा अफसराओं और दूसरे दर्जों के तबकाती निज़ाम में आप तकसीम नहीं कर सकते। एंड दोज पॉपुलर बॉय आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रूकफील्ड इज़, और वो पॉपुलर स्कूल के बच्चे जो इंग्लिस्तान के लिए इतने ही ख़ास हैं जितने ब्रूकफील्ड के बच्चों के लिए। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें जो है उनको, आपको उन्हें यहाँ लाना ही पड़ेगा। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियस बाई राइटिंग अ चेक ऑफ फ्यू गेनीज एंड कीपिंग दैन एट आर्म लेंथ। आप उनके लिए कुछ रकम का चेक लिखकर उन्हें अपने आप से एक फासले पर रखकर अपने ज़मीर को कभी मुतमईन नहीं कर सकते। दे आर बिसाइड, इसके बावजूद दे आर प्राउड ऑफ ब्रूकफील्ड, इसके बावजूद वो बच्चे ब्रूकफील्ड पर इतना ही ज़्यादा फ़ख्र करते हैं जस्ट एज यू आर, जैसा कि आप करते हैं। ईयर हैंड, सालों बाद, मे बी बॉयज़ ऑफ दिस दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हेयर, यानी सालों बाद हो सकता है कि आने वाले सालों में इस तरह के लड़के यहाँ दाखिला ले लें। a few them of them at rent, उनमें से कम चंद एक हर हाल में यहाँ पर दाखिला ले लेंगे। why not, क्यों नहीं। why ever not, क्यों कभी नहीं हो सकता। चिप्स डियर, प्यारे चिप्स, रिमेंबर दिस इज़ 1897, याद करें कि ये 1897 है। नॉट 67, ये 1867 नहीं है। सो
एंड गुड आइडियाज़, सॉरी, व्हेन यू आर एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे, यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक्ड इन दोज डेज, तुम्हारे जहन में उन्हीं दिनों के नज़रियात जड़ पकड़ चुके हैं। दे वर टू, और वो बिला सुबह अच्छे नज़रियात थे उस वक्त, बट फ्यू, लेकिन चंद एक, जस्ट अ फ्यू, चंद एक, चिप्स वांट अनस्टकिंग, लेकिन चिप्स तुम इसमें कभी तब्दीली ना ला सकोगे। रादर टू, सेकंड पैराग्राफ को हम देखते हैं, रादर टू हर सरप्राइज ही गेव अवे एंड सडनली बिकेम अ कीन एडवोकेट ऑफ प्रपोजल, वो हैरान रह गए कि जब चिप्स ने उसकी बात मान ली और उसकी तजवीज़ का ज़बरदस्त हमायती बन गया। द वोल्ड फेस was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to dangerous experiment। ये तब्दीली इतनी मुकम्मल थी कि अरबाब अख्तियारात गैर मुतवक्का तौर पर काबू आ गए और इस ख़तरनाक तजर्बे की मंजूरी देने पर रजामंद हो गए। द बॉय फ्राम द पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रूकफील्ड ऑन सैटरडे आफ्टरनून, एक हफ्ते की सापेर पॉपुलर मिशन के बच्चे जो है ब्रूकफील्ड में पहुंच गए। दे प्लेड सोकर विद द स्कूल सेकेंड टीम, वो उन्होंने स्कूल की दोम दर्जे की टीम के साथ फुटबॉल का मैच खेला। एंड डिफीटेड बाई, वर अनरेबली डिफीटेड बाई 7 गोल to 5, और वो बावकार अंदाज में 7 के मुकाबले 5 गोल करके शिकस्त खाई। एंड लेटर एंड हाइटी विद द स्कूल, फिर उन्होंने स्कूल के साथ जो है उन्होंने हाइटी की इन द डाइनिंग हॉल, बड़े खाने के कमरे में। देन दे मेट द हेड, फिर उनको हेड मास्टर से मिलाया गया। एंड वर शोन ओवर द स्कूल, और उनकी स्कूल की सैर करवाई गई। एंड चिप्स सा देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, और मिस्टर चिप्स ने उनको जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है अलविदा किया। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से हो गई बगैर किसी रुकावट के। ऑफ एनी काइंड, मुख्तलिफ किस्म की। एंड देन इट वाज क्लियर दैट, और फिर ये बात जो है वाजे हो गई, दैट द विजिटर वर टेकिंग अवे विद दैम आ फाइन एंड इम्प्रेशंस दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, और ये बात वाजे हो गई कि जो आने वाले मेहमान लड़के थे वो इतनी ही अच्छा तसर लेके जा रहे हैं जितना वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द synonym conscious is inner self, and keep and let is a idiom mean to keep away, suddenly is abruptly, volte face is complete change, and then there is a hitch, the hitch is hindrance, impression is the feeling. So we will discuss the next one, that is we will translate the next one। they took back with them the memories of a charming woman, वो अपने साथ जो है एक पुरकशिश औरत की यादें लेके गए। हु हैड मेट देम एंड टॉक टू देम, जो उनसे मिली थी और उनके साथ बातचीत भी की थी। दे सॉरी ओके फॉर 1 years later, एक दफ़ा साल बाद, ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान, आ प्राइवेट स्टेशन एट अ बिग मिलिट्री कैंप नियर ब्रूकफील्ड कॉल्ड ऑन चिप्स, बहुत सालों बाद जंग के दौरान ब्रूकफील्ड के करीब एक फ़ौजी कैंप लगा जिसमें एक मावन फ़ौजी अफसर ठहरा हुआ था। उसने चिप्स से मुलाकात के लिए आया। एंड सेड दैट ही हैड बीन वन ऑफ द फर्स्ट विजिटिंग टीम, और उसने बताया कि पॉपुलर स्कूल से आने वाले बच्चों वाली टीम में जो है वो लड़का था, खेला था। चिप्स गेव हिम टी एंड चैटेड विद हिम, चिप्स ने उसे चाय पिलाई और उसके साथ गपशप की। टिल एट लेंथ, बड़े लंबे अरसे तक। शेकिंग हैंड, फिर उसने उससे हाथ मिलाया। मैन सेड, और आदमी ने कहा, एंड हाउ इज़ द मिसेस सर, और जनाब आपकी बेगम कैसी हैं। रिमेंबर हर वेरी वेल, मुझे वो अच्छी तरह याद हैं। डू यू, क्या वाकई। चिप्स आंसर ईगरली, चिप्स ने इश्तियाक से जवाब दिया। रादर, काफ़ी। आई शुड थिंक एनी वन कुड, मेरा ख्याल है कि ये हर किसी को याद होगी। एंड चिप्स रिप्लाइड, और चिप्स ने जवाब दिया। आई शुड थिंक एनी वन, चिप्स, दे डोंट, फिर जान लो उसको याद नहीं है। यू नो, एट लीस्ट नॉट हेयर, कम अज़ कम यहाँ किसी को भी नहीं। बॉय कम एंड गो, लड़के आते हैं और चले जाते हैं। न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर वक्त जो है नए चेहरे होते हैं।
मेमोरी डजन लास्ट, यादें हमेशा नहीं रहती। इवन मास्टर डोंट स्टे फॉर एवर, हत्ता कि असातिज़ा कराम भी लंबे तक नहीं ठहरते। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, when old Gribber retired, he is the school butler. There hasn't any been anyone else who ever saw my wife. जब बूढ़ा ग्रेबर रिटायर्ड हुआ है, वो स्कूल का खानसामा था, तो यहाँ से अब ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने मेरी बीवी को देखा हो। शी डाइड, वो वफात पा गई थी, मर गई थी। यू नो, जब जानते हो, लेस देन अ ईयर आफ्टर यू विजिट इन 98। आप जो है वो कहते हैं, आपको पता है कि स्कूल आपके दौर के बाद एक साल भी कम अरसा में वो फौत हो गई थी 1898 में। देन आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। अब ये बेटे जो है वर्ड कुछ जो है ना यहाँ से यहाँ जो ना उन्होंने लिया हुआ है, जैसे ईयर है तो हियर हैगा। मैं और जनाब, मुझे ये सुनकर बेहद अफसोस हुआ। देयर इज़ टू ऑफ थ्री ऑफ माई पॉल्स, पॉल्स कहते हैं फ्रेंड को। यहाँ था मेरे 2 या 3 साथी ज़रूर ऐसे हैं जिन्हें एनी हु रिमेंबर हर क्लियर एनीथिंग, जिन्हें वो किसी भी चीज़ की तरह अच्छी तरह याद करते हैं। दो वी डिड ओनली सी हर दैट वर्स्ट, अगरचे हम उन्हें सिर्फ उसी वक्त ही मिले थे, मगर हाँ, यस यू आर रिमेंबर हर ऑलराइट, मगर हाँ वो हमें अच्छी तरह याद है। सो वी हैव ट्रांसलेटेड दिस एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the synonym of the words. Charming is splendid, beautiful. Station is to mean to placement. Then there is the word butler. Butler is a cook, खानसामा होता है। और then there is the word, the last word is the worst. So we will think about this. What is a worst? That means to sing something like that. And then there is a grand, grand is a big. So we have translated it and as well as we have discussed in Urdu, हमने उर्दू में भी किया। सो अब जो है हम इसके लास्ट लेंस पढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डे आई हैव एवर इन माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। वो कहते हैं मुझे वो जो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो है बेहतरीन दिन था। एंड क्या कहते हैं, विश इट वॉज देन, it was then not nay straight, और वो कभी भी अभी ना हो, लेकिन वो बेहतरीन दिन था और उन दिनों में से एक था। काश आज की बजाय वही दिन फिर लौट आए। देन आई डू एम ऑफ टू फ्रांसो टुमारो, फिर मैं जो है वो कहता है साफ कहता हूँ कि मुझे कल फ्रांस जाना है। अ मंथ और सो लेटर चिप्स हार्ड दैट, एक महीना या इससे कुछ दिनों बाद चिप्स को ये खबर मिली दैट ही हैड बीन किल्ड एट पैशनडेल, कि उसको जो है पैशनडेल के अंदर जो है उसको मार दिया गया है, जो उसको अब उस दुनिया में कोई भी नहीं है जानने वाला। अब हम जो है इसको उर्दू में जो है थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। ये कहानी जो है एक्चुअली मिस्टर चिप्स की यादों के ऊपर है और मिस्टर चिप्स जो है शादी के बाद जो है मिस्टर चिप्स के अंदर क्या कर तब्दीली आई। जब कैथरीन बिजेस वहाँ पे पहुँची तो वो बेशक खूबसूरत किस्म की औरत थी और उसने तमाम दूसरी बीवियाँ जो होती थी असातिज़ा कराम से, उनसे वो जेलस होती थी। और मिस्टर चिप्स और कैथरीन बिजेस ने स्कूल को जीत लिया था जिस तरह उसने बच्चों को से जीत लिया था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि मिस्टर चिप्स के अंदर जो है उसने बहुत सी तब्दीलियाँ की, क्योंकि शादी से पहले मिस्टर चिप्स जो है एक ड्राई किस्म का और एक न्यूट्रल किस्म का बंदा था। उसकी अपेयरेंस में भी उसने काफ़ी तब्दीली लाई और उसको एक डिसेंट किस्म का जो है इंसान बना दिया। और मिस्टर चिप्स का दिमाग जो है अभी एडवेंचरसली चलना शुरू हो गया था और वो उसके मजाक में भी जो है काफ़ी बेहतरी आ गई थी। और जब उसने ज्वाइन किया तो वो अपना सोचता था कि मेरे अंदर जो है एक मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मेरी बात को माना जाए और ये सारी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। तो अल्लाह ने सब कुछ ये उसको अता कर दिया था और वो अच्छी तरह समझता था कि अब उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी थी। और इसी तरह के छोटे छोटे वो मजाक करना शुरू कर दिया और उसका जो है अब मेमोरीज़ जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो गई थी। वैसे वो क़यामत पसंद किस्म का आदमी था, लेकिन
उसके इनकलाबी जो बातचीत थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो गया था। और मिस्टर चिप्स जो है एक जेंटल और वाइज किस्म का जो है ना मिक्सचर बन चुका था। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो कभी कभार मिस्टर चिप्स को मुकम्मल तौर पर जो है ना तब्दील कर लेती थी, लेकिन कभी कभार जो है वो उसकी बातों के नहीं मानता था, और जब कभी उसकी बातों को वो नहीं मानता था तो खामोश हो जाता था। और मिस्टर चिप्स की पर्सनल हैप्पीनेस जो है ना वो भी बेहतर हो गई। अब एक जो है कैथरीन बिजिस की तरफ से जो है एक आई गई, एक जो है ना तजवीज़ लाई गई कि हम जो है ब्रुकफील्ड स्कूल में जो है मिशन स्कूल के जो पॉपुलर बच्चे हैं वो वहाँ पे जो है एक मैच खेलने आए। लेकिन सारे लोग जो है इस बात के ख़िलाफ़ थे कि वो जो लड़के हैं वो हॉलीजन्स हैं और वो जो गैर मुहज़्ज़ब बच्चे हैं, और जब वो ब्रुकफील्ड के अंदर जो है ना आएंगे तो इस स्कूल के ऊपर जो है ना बड़ा मसला होगा। लेकिन कोई भी नहीं मानने को तैयार था। कैथरीन अपनी बात पर कायम रही और वो कहती है कि आप और स्कूल वाले माजी का सोचते हैं और मैं जो है मुस्तकबिल में तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो है ये लड़के दोबारा जो है यहाँ पे आ जाएं और आप उनको रोक नहीं सकते। आप मिस्टर चिप्स आप जो है बहुत पुरानी सोचते हो, और ये जो है नई बात है, और इंग्लैंड को आप कभी भी दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, बड़े लोग और छोटे लोग के अंदर। ये जो है इंग्लैंड बराबर है। और मिस्टर चिप्स आप याद करो ये जो है 80-90 नहीं है, 80-70 नहीं है, 80-90 है, जब आप कैम्ब्रिज के ऊपर थे और आपके नज़रियात उस वक्त बहुत अच्छे थे। फिर जो है हैरान कुन तौर पर जो है इस प्रपोज़ल को स्कूल वालों ने और मिस्टर चिप्स ने जो है मान लिया, और एक शाम जो है पॉपुलर बच्चे जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो है फुटबॉल का मैच खेलने आए और उनको स्कूल की दूसरी टीम के साथ खिलाया गया और वो 5-7 से शिकस्त खा गए। उसके बाद उनको हेडमास्टर से मिलाया गया और हाई टी भी दी गई, और हाई टी देने के बाद जो है उनको मिस्टर चिप्स जो है शाम को वहाँ पे एक स्कूल से स्टेशन पे छोड़ के आया, और अपने साथ वो जितने अच्छे तसव्वुरात लेके भी गए थे उतने अच्छे तसव्वुरात वो छोड़ के भी गए थे। और फिर जो है अपने साथ एक खूबसूरत और एक दिलकश किस्म की औरत जो कैथरीन बिजिस की यादें भी लेके गए थे। काफ़ी सालों बाद जब जंग के दौरान जो है एक आर्मी का जो है कैंप वहाँ पे लगता है स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स को जो है कुछ एक आदमी मिलने आता है और मिस्टर चिप्स के साथ बातचीत करता है और उसे सब कुछ बताता है, और आखिर में पूछता है कि आपकी वाइफ कैसी है सर। तो वो कहता है तुम उसको जानते हो? वो कहता है हाँ मैं बहुत जानता हूँ। और बाकी जो है वो कहता है लड़के आते हैं और लड़के चले जाते हैं, और अभी जो है एक बूढ़ा ग्रिबल जो आखिरी आदमी था स्कूल के अंदर जो रिटायर्ड हो गया खानसामा था, और वो जानता था कि मेरी बीवी थी, और जब आप स्कूल में विज़िट किया था उससे 1 साल से भी कम अरसे बाद उसकी बीवी फौत हो जाती है। और वो कहता है मेरे 2 या 3 जो है, वो लड़का कहता है कि 2 या 3 दोस्त हैं जो अच्छी तरह जानते हैं और उनसे मिले भी थे, और वो बिल्कुल जो है लम्हा बहुत शानदार दिन था, और उस दिन बहुत अच्छा मैच हुआ था और अच्छी गेम भी थी और मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। और मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन की बजाय ऐसे दिन कभी भी ना लौट के आएँ। और उसके बाद वो लड़का जो है फ्रांस में चला गया, और 1 माह के बाद जो है मिस्टर चिप्स को ये खबर मिलती है कि वो लड़का जो मिस्टर चिप्स से मिला था, जो उसके साथ बीवी की बातें भी की थी, वो फ्रांस के अंदर एक जगह है पैशनडेल के अंदर जो है उसको कत्ल कर दिया गया और मर गया, और अब कोई भी आदमी नहीं था जो उसकी वाइफ को जानता था। सो अब हमने जो है उर्दू में भी डिस्कस किया है। अब हम जो है इसके आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रुकफील्ड में कैथरीन कितनी ज़्यादा मशहूर थी। हाउ वाज कैथरीन रिसीव्ड आ ब्रुकफील्ड, शी वाज रिसीव्ड आ वेरी वार्मली at Brookfield. The wife of the other master first fell jealous of her but was soon challenged by her personality. She became much famous with the boys and master alike. She conquered Chips. Question number 2 है how was the Chips marriage with the Catherine? The marriage was greatly successful. शादी जो है ना शानदार थी, and Chips was totally changed now. और चिप्स के अंदर काफ़ी तब्दीली आ गई थी। शी वन द ब्रुकफील्ड एंड आल्सो वन ओवर द चिप्स। अब उसने स्कूल के साथ साथ बच्चों का दिल भी जीत लिए थे। व्हाट काइंड ऑफ फेलो एज मिस्टर चिप बिफोर मैरिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिप्स वाज अ ड्राई एज वेल एज अ न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो खुश्क और एक जो है आम सा आदमी था बिफोर हिज मैरिज।
ही वॉज रिस्पेक्टेड बट नॉट पॉपुलर टीचर टिल देन। वो रिस्पेक्टेड तो था, काबिल इज़्ज़त था, लेकिन उस वक्त तक जो है वो बड़ा मशहूर टीचर नहीं था। वट चेंज डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी मेड हिम अ न्यू मैन, उसने उसको एक नया इंसान बना दिया था। हिज आइज गेन शाइनिंग, उसकी आंखों में जो है चमक आ गई थी। एंड हिज माइंड बिगेन टू थिंक पॉजिटिवली, और उसका दिमाग जो है मुस्बित सोच रखने लग गया। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रीव, उसकी जो मजाक करने की पावर थी वो ज़्यादा हुई। एंड हिज डिसिप्लिन वाज इम्प्रूव्ड, और उसका जो है नज़्म व ज़ब्त बेहतर हो गया। एंड बेटर नो, अब काफ़ी अच्छा होगा। ही बिकेम पॉपुलर विद द बॉयज़, अब लड़कों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हो गई। मोर एवर शी ब्रॉडेड हीज व्यूज़ एंड आइडियाज़, मज़ीद उसके नज़रियात को उसने तब्दील किया और उसको वसत दी। वट वॉज द जोक अबाउट द लेक्स कैनोलिया, लेक्स कैनोलिया का मजाक क्या था? लेक्स कैनोलिया वाज अ लॉ दैट हैड गिवन परमिशन टू द पेट्रिशियन, जो नोबल मैन को ये इजाज़त देता था, कानून जो है रोमन रोम, टू मैरी अ प्लेबियन, एक लोअर क्लास का औरत से वो शादी कर सकते हैं। चिप्स यूज टू डू मैनी जोक्स एंड पन्स टू एक्सप्लेन दिस लॉ, इस मजाक को, इस लॉ को बताने के लिए वो अक्सर मजाक क्या करते थे। ही वॉज क्रैक्ड अ जोक अबाउट मिस्टर पेट्रिशियन, वो मिस्टर पेट्रिशियन की इस जोक मजाक के बारे में वो बहुत ज़्यादा क्रैक थे। एंड मिस प्लेब्स वांट द प्लीज द बॉय, और इस तरह वो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश भी करते थे। वट वर कैथरीन व्यूज़ ही गेव चिप्स अबाउट द मिशन इन द ईस्ट लंदन, जो ईस्ट लंदन के बारे में जो सजेशन थी कैथरीन की वो क्या थी? शी सजेस्टेड दैट द टीम फ्रॉम द मिशन स्कूल शुड कम अप टू द ब्रूकफील्ड एंड प्ले विद द वन ऑफ द स्कूल टीम एट सॉकर। वो ये कहती थी कि मिशन स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पे आएँ और वो फुटबॉल का मैच जो है इस टीम के साथ खेलें। So question number 7, that is important. What was the result of soccer match between teams of Brookfield and the Popular Boy? The boy from Mission School was defeated by 7 goals to 5. Popular Boy को जो है 7 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त हुई थी। What was the impression of the Catherine on Popular Boy? She exercised a pleasant impression on the Popular Boy. उन्होंने Popular Boys के ऊपर बहुत अच्छे तसुरात छोड़े। They had very pleasant, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज विद देम, और अपने साथ जो है ना खूबसूरत यादें ले गए। स्पेशली द मेमोरीज ऑफ एक्सीलेंट वुमेन, ख़ास तौर पर जो एक शानदार किस्म की औरत की यादें। हु हैड मेट एंड टॉक टू देम, जो उनके साथ मिली थी और उनके साथ बातचीत भी की थी। वैन एंड हाउ डिड चिप्स गेट द लव ऑफ अ बॉयज़, कैसे और किस तरह जो है चिप्स ने जो है लड़कों की मोहब्बत हासिल की थी। चिप्स गॉट द लव ऑफ बॉयज़ आफ्टर हिज मैरिज, शादी के बाद उसे ये मोहब्बत मिली। ही बिकेम काइंड बट सॉफ्ट टू द स्टूडेंट्स, वो काइंड मेहरबान भी हो गया और बहुत ज़्यादा जो है नरम नाजिक भी हो गया। हिज जोक्स एंड निमोनिक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिम मोर लवेबल अमंग द बॉयज़, उसके जो है ऐसे मजाक जो दिमाग के ऊपर ठहर जाने वाले थे और उनकी मेमोरी को बेहतर करते थे, ये तमाम चीज़ जिम्मेदार थी कि उसको लवेबल बनाया और काबिल कदर बनाया लड़कों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज कैथरीन व्यू अबाउट द क्लास डिस्टिंक्शन, जो क्लास के अंदर एक फ़र्क होता है ऑफ सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में जो है कैथरीन के क्या नज़रियात थे। शी डिड नॉट बिलीव इन क्लास डिस्टिंक्शन, वो जो है क्लास के अंदर जो फ़र्क है कौम के अंदर वो उसके ऊपर यकीन नहीं रखती थी। शी बिलीव दैट इंग्लैंड वुड बी आ कंट्री फ्री ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन नियर इन फ्यूचर, कि आने वाले दिनों में इंग्लिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगी, क्लास के अंदर फ़र्क नहीं होगा, सब लोग इक्वल राइट्स पाएंगे, उनको सब लोगों का एक जैसा होगा। शी बिलीव इन द सोशल इक्वलिटी, वो क्या कि माशरती तौर पर जो है सबकी बराबरी के ऊपर जोर देती थी और इस तरह जो है कैथरीन जो है एक इक्वल राइट्स देने वाले की बात करती थी। और इस पूरी का जो है इस पूरी का इसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैथरीन ब्रिजेस की जो शादी के बाद जो है मिस्टर चिप्स का किस तरह चेंज हुआ, उसका जो है वो किस तरह तब्दीली लाई, लेक्स कैनोलिया क्या था, और कैथरीन ब्रिजेस जो है पॉपुलर बॉयज़ के बारे में क्या कहती थी, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिसके ऊपर जो है स्कूल की काबीना और मिस्टर चिप्स राज़ी नहीं था। ये 4 क्वेश्चन जो है इस में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप करेंगे और इसके साथ साथ आपको जो है उसका फ़ायदा भी होगा और इसके साथ साथ आपको लर्न करने में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा लेंथी सबक था, लेंथी ट्रांसलेशन थी,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे और इसके साथ साथ जो है लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल एंड आई वुड वेट फॉर योर सजेशन एंड रिस्पांस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।